All right. Hi, everyone. Hi. Good morning, Kunal. Good morning, Aman. Yeah. Hi, Sayam. Good morning, Harsh. Good morning, Ishan. Hi, Shravya. Hi, Sarvesh. All right. कैसा चल रहा है आप लोगों का एमटी का प्रिपरेशन? कौन कौन पैनिक में है, कौन कौन कंट्रोल में है? या हाय, गुड मॉर्निंग दिया. गुड मॉर्निंग आदित्य. ग्रेट ग्रेट. सो वैसे आज अपना गैशियस स्टेट का लेक्चर है, बट देन वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग न्यू टुडे. Like we'll keep it relaxed. We will only study the next topic in real gases after MT. Okay, so like I have kept today's session primarily focused on revisions. Okay, so any conceptual doubts, numerical doubts that you might have, वो हम लोग discuss करेंगे. ठीक है. Now, before I actually start with the revision, like I just wanted to quickly share an important observation that I had about students, before the MT and after the MT. So this is something which I can say put a heading in terms of habits of successful students. This is something which comes as an observation over the years, seeing how students are behaving, are in command before MT and after MT. Okay, so just wanted to quickly update you on that. And then definitely हाँ आपके जो भी questions हैं वो हम लोग discuss करेंगे. And okay, so I am getting a doubt from Sarvesh, would MT be too difficult? नहीं Sarvesh, ऐसा नहीं होगा. MT would not be that difficult. It will be something on the lines of जो topic wise tests आप दे रहे हो. ठीक है. The only difference I would say would be the fact that back to back tests होंगे आपके. So on Saturday you have mains का test, and on Sunday you have advanced के दो tests from I think 9 to 12 and then 1 to 4 या 2 to 5 ऐसा कुछ होगा, right? And मेंस का पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है. मेंस का पैटर्न कैसा रहता है? In each subject you get 25 questions, out of which 20 will be single choice and 5 will be numerical answer type, subjective बोल लो उनको. Like you don't have to write answers, like detailed answers to them. You just have to enter the numerical answer. It could be an integer or a numerical value. So 5 questions वैसे रहेंगे. So that will be the typical mains का paper. Advanced का pattern is generally unpredictable, क्योंकि advanced के pattern में what we observe is changes होते रहते हैं. So maybe I am speculating. I have not seen the advanced MT का paper आप लोगों का, but I am speculating कि शायद इस pattern पर based हो. ये इस साल के JEE एडवांस का पैटर्न था. हर साल थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता रहता है. ठीक है. सो यू कैन नोटिस कि विद इन अ सब्जेक्ट किस तरीके का पैटर्न था. विद इन अ सब्जेक्ट यू हैड 18 क्वेश्चंस इन पेपर 1. ठीक है. सो 18 into 3 total, like you will have 54 questions in entire paper 1, and then paper 2 में भी same distribution रहेगा, 6 6 6, total 18 questions per subject, or overall 54 questions, right? This is something which was this year का advance का pattern. So इसमें what I would want you to really understand, जो एक important takeaway है इससे, is please ensure कि आप instructions अच्छे से पढ़ रहे हो.
ठीक है, बिकॉज कहाँ पर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है, पार्शियल मार्किंग है, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है. एंड मेनी टाइम्स लाइक दिस मेक्स एन इम्पैक्ट. अगर स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं ढंग से एंड दे जस्ट आर पैनिकिंग और फटाफट फटाफट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, तो they might end up with negative marks or might end up losing the opportunity of getting partial marks. तो ये आप ध्यान से समझ लो अभी, so that you are aware before your actual advanced examination. ठीक है, and this is something which I am saying again, not sure if this will be the pattern of advanced. ठीक है, advanced का pattern हो सकता है चेंज हो जाए, जो एम्प्टी है आपका उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो यू विल हैव टू रियली, क्योंकि हर साल एडवांस में भी ये पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई होता रहता है, सो यू विल हैव टू रियली फोकस इनटू रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, लाइक आपको अलग से डेडिकेटेड टाइम नहीं मिलेगा इंस्ट्रक्शंस रीड करने का. यू विल हैव टू यूज द टाइम विद इन द टेस्ट ड्यूरेशन टू क्विकली रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट द पेपर. ठीक है, so this will be one important aspect. like paper 2 में भी like you will have single digit integer. कई बार हो सकता है कि सब्जेक्ट में भी नेगेटिव मार्किंग हो, जहाँ पे ऐसे सिंगल डिजिट इंटीजर को पूछा जा रहा है, आंसर करा जा रहा है. ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रिकी ये वन और मोर देन वन चॉइस वाले होते हैं. ठीक है, इसमें बहुत कॉशियसली आपको प्रोसीड करना पड़ता है. लाइक यू कांट रियली डू गेस वर्क्स. पार्शियल मार्किंग मिलेगी आपको, कॉन्फिडेंट हो उन्हीं ऑप्शंस को मार्क करो, बट गलती से भी एक गलत ऑप्शन मार्क हो गया तो फिर नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, यू विल लूज ऑल द हार्ड वर्क. तो ये चीज़ बहुत केयरफुली कॉशियसली अटेम्प्ट करना. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों का है, कॉमन क्वेश्चन आप सबकी तरफ से आ रहा है, इज द फैक्ट दैट विल देयर बी shuffling of the batches. Well, every year it happens that batches are shuffled depending upon the rank in MT. ठीक है, so it might happen that yes, those batches in which you have similar syllabus level. ठीक है, आई थिंक फ्लैगशिप और 3 ईयर वालों के साथ तो नहीं होगा आपका, क्योंकि फ्लैगशिप एंड 3 ईयर वाले तो ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेबस. बट आपका जो अभी करंट 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करे हैं, उनके जो बैचेस हैं उनके बीच में जहाँ पर सिलेबस एट पार है, शफलिंग कैन हैपन. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच विल बी बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस इन द मेजर टेस्ट एंड मे बी, आई एम नॉट श्योर, वो डिपेंड करता है, शायद टॉपिक वाइज टेस्ट का भी इंक्लूड हो जाए. सो दिस इज समथिंग विच इज केप्ट subjective. It is not something which is generally revealed to the students. वो बाद में ही पता पड़ता है once the tests are done. ठीक है, so we would want you to take all the tests seriously, right? अच्छा, having said this, then another important part which I would want to highlight is there is no benefit of cheating during your MTs. Abhi, because of the fact that you are at home and you know you have available references with you, कोई आप पे अलग से पेस का representative आके surveillance नहीं कर पाएगा, right? The only you can say hope is that you are being honest with yourself, or your parents are monitoring you during the test to make sure that you are not using any unfair means. However, you and I both know कि आप लोग इतने समझदार हो, इतने लाइक एक्सपीरियंस्ड हो कि अगर आपको किसी को भी बेवकूफ़ बनाना है तो आप बना सकते हो, लाइक बी इट टीचर्स, बी इट पेरेंट्स. सो यू गाइस हैव योर ओन वेज ऑफ वर्किंग विद थिंग्स. हाउएवर, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप अभी चीट करके अपने आप को इस एमटी में ज़्यादा स्कोर करके भी लेके आ जाओगे, तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. आप अभी के लिए कर लो, बट आपको खुद को समझ में आ जाएगा इन द लॉन्ग रन दैट आपने लाइक खुद ही को बेवकूफ बनाया है by doing that unfair practice. So what I would recommend is diligently, ठीक है, treat this as an opportunity to understand कि आपकी performance कैसी है, ranking कैसी है. ठीक है, अच्छा, another important part which I would want to talk about is
that generally what students have in mind कि हम कितना paper attempt करें, like what should be our percentage attempt, like how much should we get the how much percentage marks should we get. So again, don't speculate, don't premeditate कि मुझे इतना परसेंट पेपर करना है और इतना स्कोर करना है, because इस कैलकुलेशन में what happens is that you number one get distracted during the examination. आप back of the mind में आपकी काउंटिंग ही चलती रहती है कि कितना कर लिया, कितना बचा है and all that all things. दूसरा, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके कई बार ओवर अटेम्प्ट कर सकते हो, विच माइट लीड टू नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मुझे 90% पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे 50% पेपर अटेम्प्ट करना है. देयर इज नो सेट बेंचमार्क फॉर इट, क्योंकि आपका स्कोर वैसे भी मैटर नहीं करेगा. व्हाट मैटर्स इज द रैंक. सो व्हाट यू शुड फोकस इज दैट यू विल हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. ठीक है, and when I say maximize your score, so I'll give you the perspective of how papers are designed. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके लिए पेपर डिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं कैसा करूंगा, आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट आई विल सेट इन द पेपर, आई विल कीप अ डिस्ट्रीब्यूशन. आई विल कीप अ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मैनर दैट आई विल कीप 30-40% क्वेश्चंस विच आर क्वाइट इजी, मतलब सबको आ जाने चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बच्चों का. देन 30-40% में ऐसे भी क्वेश्चन सेट करूंगा विच आर मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लाइक उनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा ट्रिक्स होंगी, थोड़े से ट्रैप्स होंगे, तो वो मैं सेट करके रखूंगा. ठीक है, देन 20% के अराउंड क्वेश्चंस मैं ऐसे भी सेट करके रखूंगा विच आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट, विच आर गोइंग टू बी रैंक डिफरेंशिएटर्स अमंग्स टॉपर्स. कि हाँ भाई, टॉपर अगर आपको बनना है तो लाइक आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये क्वेश्चंस आंसर कर सको. सो इस तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूशन जनरली पेपर का रखा जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर सेटर्स. नाउ अब मार्क्स तो सबके सेम होते हैं, इजी क्वेश्चन होगा, मीडियम होगा या डिफिकल्ट होगा, सबके सेम ही मार्क्स होंगे. ठीक है, तो व्हाट एज अ स्टूडेंट, एज अ पेपर गिवर यू शुड हैव एट द बैक ऑफ योर माइंड इज कि हाउ डू आई मैक्सिमाइज माई स्कोर, राइट. एंड उसके लिए यू शुड नॉट गेट स्टक, you should not get stuck with difficult questions, you should not get involved in just a second guys, give me 1 minute, in fact 5 minutes, I'll just take this call and come back.
All right. Yeah. Hi guys. Sorry, I had to just take an important call. So, किस बारे में बात कर रहा था मैं? I lost the track. हाँ, in terms of attempting, कितना paper you have to attempt. So yeah, as I said, कि don't speculate. Easy, medium, difficult, सबके same numbers होंगे, right? So you should be able to recognize that and accordingly proceed. Give me 1 minute, guys. I'm just getting another important call. Guys, if you will just excuse me for 5 more minutes, I just need to complete a call. In the meantime, do you mind attempting these questions that I wanted you to practice? All right. Yeah. Okay. Sorry, guys. I had to just break up because of that call that I had to attend. Now, coming back, if you guys have started attempting questions, so okay, I just wanted to complete those important points that I wanted to talk about. So if I can again go back
to that introduction part that I was talking about. That yes, हाँ आप लोगों को हाँ राइट. सो मैं एक बार क्विक बैकग्राउंड दे देता हूँ. आई थिंक सम students have joined in after a while. So today's class we are not going to study anything new in terms of gaseous state chapter. Okay, today's class is mostly focused on revision and important pointers before giving the tests. Okay, so I hope that is clear with everyone. As well as we are going to discuss any doubts or practice questions that you would want to attempt in today's class. Okay, is that clear, Krishna? All right. Now, as I was talking about, this part of being prepared for the paper, that the exam giving strategy should be in such a way that you are able to maximize your score. Like, understand the fact that the overall paper is going to be a mix of easy, medium, and difficult questions. So this ability to identify difficult questions and moving on rather than spending unnecessary time into them is an important skill to acquire. So make sure that you are not overspending time into any question. Okay? After looking at that question, if you find कि हाँ ये difficult है, तो आप उसको बाद के लिए deprioritize कर दो. Make sure that you attempt easy and medium questions first. Okay? That is important. Secondly, I would also request, don't spend extra time in any one subject. ठीक है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, तीनों में अभी के लिए बराबर टाइम दो. डोंट ओवर स्पेंड टाइम इन मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है. राइट, अभी इस टाइम पर आपने स्टार्टिंग का ही सिलेबस पढ़ा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हो सकता है some subject might be difficult, has difficult questions, and some subject might be easy, right? हो सकता है कि मैथ्स में difficult पेपर बना दें थोड़ा और केमिस्ट्री का बहुत easy बना दें. तो अगर आपने मैथ्स में ओवर स्पेंड कर दिया टाइम और फिर आपके पास में लेट्स से केमिस्ट्री के लिए कम टाइम बचा है, तो आप वो इजी केमिस्ट्री के पेपर में भी पैनिक कर जाओगे. ठीक है, तो पुट अ हार्ड स्टॉप कि लेट्स से मुझे मैथ्स का पार्ट अटेम्प्ट करना है पहले, तो 1 घंटा मैंने उसमें अटेम्प्ट किया एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, इंश्योर दैट यू आर स्कोरिंग मोर, लाइक इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई करके पिक करके पहले उनको सॉर्ट कर लो. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द एमटी दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. Now, I also need you to understand certain important habits which successful students have in the week before MT and the week after MT. Now, अब जैसे आपका 1 हफ्ता बचा है MT के पहले का, 1 हफ्ता भी नहीं बचा है, अब तो 3-4 दिन ही बचे हुए हैं. तो इस हफ्ते में जनरली जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहते हैं, they are always in command of the situation. They are always in, they are not in panic mode, they are not into last minute preparations. उनका जो लास्ट वीक रहता है बिफोर एमटी, इट इज थॉरली फोकस्ड ऑन रिविजन. एंड रिविजन में भी ऐसा नहीं है दैट दे आर लॉस्ट. ऐसा नहीं होता कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि रिविजन करना है तो कहाँ से करूँ, कैसे करूँ. दे हैव रिविजन मटेरियल रेडी विद देम. नाउ दिस रिविजन मटेरियल डज नॉट कम ओवरनाइट. दे वर्क टुवर्ड्स this revision material. In terms of theory revision, they prepare short notes, charts, tables and formula sheets of the chapters that they have, ताकि एक summary understanding उनकी chapter की एकदम ready रहे. ठीक है, then ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ theory का revision करके चले जाते हैं. They have a revision set of good problems also, so as to recap कि एक particular chapter में लाइक किस तरीके से हमारा प्रॉब्लम्स थे, हमें किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, राइट. दैट कौन सी केयरलेस मिस्टेक्स होती थी, तो इन सब का रिकैप करने के लिए व्हाट दे वुड डू इज दे वुड हैव अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ गुड क्वेश्चंस which they would have come across in booklets, DPPs, previous papers, assignments, any reference books that they are solving. इनमें कुछ ऐसे 50-70 questions होंगे which they would have found really good and makes them recap
what the chapter was, what the variety of problem solving was in this particular chapter, careless mistakes क्या थी. So क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जेई की पढ़ाई में काफी सारी लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग से आती है. ठीक है, थ्योरी अपनी जगह, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज एन एप्लीकेशन अपनी जगह है. So what happens is that successful students, they actually have this revision material ready with them, and then they focus this on in the week before major test. ठीक है, फिर वो ऐसे इधर रैंडमली इधर उधर नहीं जाते कि कल को कुछ एकदम किसी दोस्त ने कहीं पे कुछ बता दिया कि अरे ये देखा क्या, फिर उस दोस्त ने वो बता दिया वो देखा क्या. वो ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन में नहीं जाते. दे आर वेरी काम कंपोज्ड इन टर्म्स ऑफ क्या था, कैसे करना था. ठीक है. Also an important habit is that they would give mock test. So वैसे तो आप लोगों का mock test का तैयारी already कराया जा रहा है in terms of the topic wise tests that are happening, right? In fact पिछले Sunday आप लोगों ने like test दिया था जिसमें you had the similar syllabus, like almost the same syllabus as major test, and it was like a mock test for you कि कैसा इसमें रहेगा. And I think उसका pattern भी advanced based ही था, सिंगल चॉइस और मोर देन वन चॉइस और इंटीजर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही थे उसमें, इफ आई एम करेक्ट, राइट? ये संडे को जो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था, वाज इट ऑफ दिस एडवांस पैटर्न? अच्छा, सिर्फ सिंगल चॉइस ही हुआ था. ठीक है, तो फिर जनरली अगर आपको, मैं अभी आज का अपन का लेक्चर हम जो है वो मैं एक्चुअली मैंने इसीलिए डेलिबरेटली ये मोर देन वन चॉइस वाले कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं. हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे एंड आई विल मेक यू रियलाइज हाउ यू विल हैव टू बी श्योर इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग वन और मोर देन वन चॉइस के क्वेश्चंस. ओनली अटेम्प्ट एंड ओनली आंसर ऑफ द ऑप्शंस व्हिच यू आर श्योर ऑफ. तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ. तो ये मॉक टेस्ट देने की भी एक हैबिट रहती है बिफोर द मेजर टेस्ट, so that students are well prepared in terms of their exam giving strategy. ठीक है. नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको हाईलाइट कराना चाहूंगा, विच इज आफ्टर एमटी. सो मेनी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट 80-90% स्टूडेंट्स का एटीट्यूड आफ्टर द एमटी जस्ट चेंजेस ओवरनाइट. मतलब एमटी हुआ और फिर वो ऐसा हो जाता है रात गई बात गई. मतलब उनके लिए ऐसा हो जाता है बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है, एमटी दे दिया है, अब तो वी नीड टू रिवॉर्ड आवरसेल्व्स. तो मूवीज का प्लान बनाएंगे, टर्फ पे मैचेस खेलने जाने का प्लान बनाएंगे, जो भी पुराने पाप जो थे, जो सब पेंटअप थे, उन सबको पूरा करने में लग जाएंगे. तो लाइक अंडरस्टैंड, अब आप लोगों की पहली प्रायोरिटी एकेडमिक्स है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रियलाइज दैट आफ्टर एमटी जो वीक रहता है वो बहुत क्रूशियल रहता है. बिकॉज आफ्टर एमटी वाला जो वीक रहता है जिसमें नए टॉपिक स्टार्ट होते हैं टिपिकली, तो होमवर्क का वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं रहता है. ठीक है. एंड उस दौरान लाइक यू आर ऑलरेडी इन द मोमेंटम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमटी, you are in the like optimal situation to cover any backlogs that you had. Okay, so make sure that after MT you are covering all those backlogs and ensuring that you are not wasting that time. And of course you have to also do your paper analysis. I think ये paper analysis पे तो हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी. I'm sure that you remember the important points that you need to take into account while doing paper analysis, and that is what is going to help you improve. That is actually going to give you a thorough analysis of how your performance in MT was. And मैंने आपको ये पहले भी बताया है that paper analysis is a very personal exercise. ठीक है. इसमें आप ही को डेडिकेटेड टाइम निकाल के बैठकर एनालाइज करना पड़ेगा. आपने 3 घंटे का मेजर टेस्ट दिया है मेंस का, आपने 6 घंटे का मेजर टेस्ट दिया एडवांस का, तो आप मान के चलो आपको पूरा का पूरा दिन लग जाएगा टू थॉरली एनालाइज योर पेपर्स. ठीक है. तो इसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना. ऐसा नहीं कि मतलब एमटी का पेपर हो गया और उसके बाद पता पड़ा, मतलब अब तो खैर ऑनलाइन पेपर हो रहा है, बट पहले ऐसा होता था कि एमटी का पेपर हो गया और पेपर के बाद में देखा जा रहा है तो अंधेरी स्टेशन पे समोसे मिल रहे हैं उसमें. क्योंकि बच्चे यार एकदम अरे रद्दी हो गया, ये तो पेपर दे दिया खत्म हो गया. वैसा नहीं करना. यू हैव टू रियली फोकस ऑन एनालाइजिंग इन योर परफॉर्मेंस. ठीक है. तो पेपर को आफ्टर गिविंग द टेस्ट मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग डेडिकेटेड टाइम इनटू एनालाइजिंग. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द important aspects, ठीक है, that you have to take care. Now those students who are preparing for advanced,
have to give mains as well as advanced ka MT, and those students who are just preparing for mains, they don't have to give advanced ka MT. ठीक है? All right, Deep. Okay. ठीक है. Any other questions that you would want to ask and understand? Let me know. हाँ, ओके. सो कृष्णा का डाउट है, वन और मोर देन वन क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम जनरली कैसी रहती है? तो ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप नोटिस करो, दिस इज द काइंड ऑफ मार्किंग स्कीम दैट यू हैव. नाउ इफ यू हैव मोर देन वन ऑप्शन एज एन आंसर, और अगर आप सारे करेक्ट आंसर्स को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है? एंड इफ यू सिलेक्ट लिमिटेड करेक्ट आंसर्स तो पार्शियल मार्क मिल जाएंगे. अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे तो देयर आर नो मार्क्स. बट अगर गलती से भी आपने एक भी गलत ऑप्शन को टिक कर दिया, ठीक है, मान लो ए बी सी डी में से ए बी और सी आंसर थे, ठीक है, और आपने ए बी एंड डी मार्क कर दिया, तो भले ही आपने ए बी सही वाले ऑप्शंस मार्क कर दिए, लेकिन आपने डी जो कि गलत ऑप्शन था वो मार्क कर दिया, तो देयर इज नो रिस्पाइट, सीधे -2 होगा. गलत ऑप्शन का सिलेक्शन is going to cost you the entire question with negative marks. So you'll have to be extra super cautious while attempting one or more than one के questions. समझ में आया कृष्णा? All right, then हरिओम का next doubt है, next MT कब होगा? Maybe 2-3 months down the line. जनरल 2 महीने का गैप रहता है typically between major tests. All right. हाँ नहीं कृष्णा, अगर आपने करेक्ट ऑप्शन छोड़ा हुआ है तो आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगी ना. इनकरेक्ट मार्क करने पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. ठीक है? हाँ राज, मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया दिया है कि ऐसा हो सकता है एडवांस का पैटर्न. ठीक है? बट एग्जैक्टली ऐसा होगा आई कांट से, मैंने पेपर नहीं देखा है. ठीक है? सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट द पैटर्न इन एडवांस, बिकॉज वो हर साल चेंज भी होता है. ठीक है? ऑल राइट. देन दीप, हम लोगों ने बात कर लिया था इसके ऊपर, शफलिंग बेस्ड ऑन एम्प्टी रिजल्ट्स हो सकता है. ठीक है? Then ईशान का डाउट है, should we revise between the time of paper 172 of advance? समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन मुझे ईशान. लाइक यू आर सेइंग कि एडवांस के 2 पेपर हो रहे हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो उसके बीच में लाइक रिवीजन कर रहे हैं क्या? इज दैट योर क्वेश्चन? नहीं नहीं, बहुत कम टाइम रहेगा उसमें. आराम से रिलैक्स योर सेल्फ, ईट योर मील्स वट एवर देयर आर, एंड ऑफ कोर्स डोंट ईट हैवी मील्स ताकि नींद नहीं आए. सो डोंट बॉदर मच अबाउट दैट टाइम. लास्ट मोमेंट के ऐसे एक आध 2 रिवीजन करने से कुछ होगा नहीं. ठीक है? ऑलराइट. देन विवेक का डाउट है, सो देयर इज नो एक्स्ट्रा मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस करेक्ट इवन इफ वी गेट वन रॉन्ग, डायरेक्ट -2. हाँ एब्सोल्युटली राइट विवेक. अगर आपने गलत ऑप्शन मार्क करा, इवन आफ्टर आपने कुछ सही मार्क कर दिए होंगे, बट आपने एक भी गलत को मार्क करा इन मोर देन वन चॉइस, सीधे -2. ठीक है? ऑल राइट. देन हरिओम का डाउट है, सर रियल गैस के क्वेश्चंस भी होंगे क्या टेस्ट में? हरिओम, आप लोगों को सिलेबस तो पहले ही मिल गया होगा ना, उसमें गैसेस स्टेट चैप्टर है ही नहीं. एमटी में ओनली एटॉमिक, मोल एंड पीरियोडिक 3 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के. मतलब आई होप आपको ये पहले से पता हो. मतलब इस तरीके का डाउट पूछ रहे हो तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि यू हैव लेफ्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द लास्ट मोमेंट. सो डोंट डू दैट. ऑल राइट. नाउ कमिंग बैक, एज आई सेड कि मोर देन वन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मोर देन वन चॉइस क्वेश्चंस की. तो उसके लिए ये पीरियोडिक के कुछ मोर देन वन चॉइस क्वेश्चंस हैं व्हिच आई वुड वांट यू टू स्पेंड सम टाइम. मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ. हाँ
ये 2 क्वेश्चंस का पहले आंसर करो, ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, राइट दिया। हाँ, हो सकता है हर्ष, इट्स पॉसिबल। वन और मोर देन वन लिखा है ना। ठीक है, सो 24th क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो, तो लेट मी प्रेजेंट द आंसर्स। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है, करेक्ट पूछा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मैक्सिमम फॉर सल्फर एंड चारकोल्स, करेक्ट। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। दिस इज समथिंग जिसके पीछे का रीजन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इनके कंपाउंड्स जो हैं वो कलर्ड नहीं होते हैं, पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये नोट्स में लिखा था आप लोगों के, ठीक है। देन acidic strength of Mn2O7 is more than MnO2, this is also correct। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था दैट ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा होता है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। लाइक आप लोगों ने ये भी पढ़ा था एज एन एग्जांपल, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करा जा रहा है, SO, SO2, SO3, तो इसमें कैसा है, एसिड, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ हर्षल, हम लोग गैशियस स्टेट के डाउट्स अब एमटी के बाद ही कर लेते हैं, ठीक है, बट अगर आपके पास में स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर क्लैरिफाई कर लो, आई वुड नॉट स्टॉप यू, बट एमटी के बाद में हम लोग रिज्यूम करेंगे तो बेटर रहेगा। ऑलराइट, देन लास्ट ऑप्शन, SN has the highest or sorry least ionization enthalpy in carbon family, राइट। सो कार्बन फैमिली में कैसा रहता था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही थी, ठीक है। एंड देन ये एक्सेप्शन था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन क्या होता है आपको याद रहने चाहिए, तो इस एक्सेप्शन की मदद से इफ यू विल जज दिस क्वेश्चन तो यस, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें ABCD ऑल 4 आर करेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है, मतलब इनकरेक्ट नहीं है, तो अगर आपने पार्शियल मार्क्स करे हैं, चारों के चारों मार्क कर दिए तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 करेक्ट करें तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 करेक्ट करें तो 2 मार्क्स, 1 करेक्ट कराए तो 1 मार्क, ठीक है। इसमें नेगेटिव का स्कोप ही नहीं बचा, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट नहीं करा, छोड़ दिया, तो 0 मार्क्स, ठीक है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 25th वाले पर। ट्राई करो।
ऑलराइट, सो इसमें आंसर्स क्या रहेंगे अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ. सोडियम क्लोराइड हैज मोर आयोनिक कंडक्टेंस इन aqueous solution compared to पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है, ये आंसर नहीं सॉरी, ये आंसर इनकरेक्ट है. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो अब इसका टॉपिक कहाँ से रिलेटेड था? दिस वाज जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दैट अब सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड में अनायन तो सेम है, जो डिफरेंस आएगा वो कटायन की वजह से आएगा, राइट. अब कटायन में चार्ज दोनों का सेम है, ठीक है, तो चार्ज की वजह से अंतर नहीं आएगा, मोबिलिटी की वजह से अंतर आएगा, राइट. कितना स्पीड रहेगा आयंस का. तो इसमें व्हाट वी हैड अंडरस्टूड इज कि Na+ की मोबिलिटी कम हो जाएगी बिकॉज Na+ ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है, राइट. तो Na+ ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगा तो उसका एक्वस आयन का साइज बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी. मोबिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी कंडक्टिविटी या यू कैन से कंडक्टेंस कम हो जाएगी. तो सोडियम क्लोराइड हैज लेसर आयनिक कंडक्टेंस एज कंपेयर टू पोटेशियम क्लोराइड. तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया. अब जिसने भी ए मार्क करा है आप सीधे -2 कर लो, ठीक है, बिकॉज ए तो गलत था. अब मैटर ही नहीं करेगा कि आपने BCD में सही करा है कि गलत करा है. ए आपने अगर मार्क कर दिया और वो गलत है तो सीधे -2, ठीक है. नाउ नहीं, इसमें रिएक्टिविटी से कुछ लेना देना ही नहीं है, सही हम, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो कंडक्टेंस का इन एक्वस आयंस के ऊपर है. सोडियम क्लोराइड पानी में डालने पे कोई रिएक्शन थोड़ा ना कर रहा है. KCl को पानी में डाल रहे हो तो कोई रिएक्शन थोड़ा ना कर रहा है, वो तो सिर्फ आयंस हैं जो कि होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनसाइड द सॉल्यूशन. ऑलराइट, देन यहाँ पर बी में इन अ मॉलिक्यूल ABC if XA equal to 1, XB equal to 2 and XC equal to 3, ठीक है, where these are electronegativities, in an aqueous solution BC bond will get broken predominantly. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे A और B के बीच में डेल्टा En कितना हो गया 1 का, और B और C के बीच में डेल्टा En कितना हो गया 2 का. तो आप लोगों ने क्या सीखा था? दैट अ मोर पोलर बॉन्ड, ठीक है, जिसके बीच में ज़्यादा डेल्टा En है, दैट इज लाइकली टू बी ब्रोकन. सो BC के ब्रेक होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. सो करेक्ट, BC के बीच में डेल्टा En ज़्यादा है ना. हाँ बोलो सर्वेश. सर AC में ज्यादा है ना? नहीं, यहाँ पर AC के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं है. मॉलिक्यूल इज ABC, A और B, और B के C में B और C के बीच में बॉन्ड है ना. हाँ समझा. ठीक है, ऑलराइट. देन next is that in a particular molecule AB, if XA is equal to 1 and XB equal to 4, then the molecule is predominantly ionic. तो ये भी करेक्ट है. लाइक XA equal to 1 तो ये अल्कली मेटल्स या उनसे भी कम En वाला कैटेगरी का हो गया, राइट. एंड XB equal to 4 मतलब ये फ्लोरीन हो गया. तो फ्लोरीन विद दीज अल्कली मेटल्स ये आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं प्रेडोमिनेटली. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. देन लास्ट वाला डी ऑप्शन, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, इंडियम, राइट. तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछा है. अब आपको एक्सेप्शंस याद है आयनाइजेशन एनर्जी के, तो उसमें आपने पढ़ा था दैट गैलियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, राइट. एंड आपने ये भी पढ़ा था दैट थैलियम का इंडियम से ज़्यादा होता है. ठीक है, ये एक्सेप्शंस आपको याद होंगे. बट अब थैलियम क्या गैलियम से भी या एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होता है? मे बी, आई एम नॉट श्योर. तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं मोस्ट लाइकली ये ऑप्शन को छोड़ देता. ठीक है, हाउएवर अगर आपको नोट्स याद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, तो मैंने उसमें एक्चुअली ये एडिशनल बताया था दैट थैलियम का एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो जाता है. दिस इज एन एक्सेप्शन टू रिमेंबर. वो मैंने उस टाइम बताया था, बट जनरली आई रिमेंबर कि स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता है. ठीक है, स्टूडेंट्स को जनरली ये पार्ट जरूर याद रहेगा गैलियम एल्यूमिनियम और थैलियम इंडियम का, बट ये नहीं याद रहता कि थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो जाता है. तो एज सच ये ऑप्शन करेक्ट है, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स अ डिफिकल्ट ऑप्शन. मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं तो छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ B और C मार्क करके आ जाऊंगा, मैं पार्शियल मार्किंग के साथ में खुश रहूंगा. ठीक है,
नहीं ईशान, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, बहुत क्लोज है, लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट इफ यू आस्क मी देन in the data set that we have in the booklet also, gallium is slightly more than aluminum. ठीक है, सी ऑप्शन में आप गौतम देखो ना, इसमें ये अल्कली मेटल्स जैसा है और ये फ्लोरीन है, तो अल्कली मेटल्स और फ्लोरीन क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड ही तो बनाते हैं प्रेडोमिनेंटली। समझ में आया? ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें ये पता नहीं कब जाएगा, वेट। ऑल राइट, ठीक है, आंसर करो 26 के बारे में, ट्राई करो क्या आंसर रहेगा। हाँ राइट कृष्ण। ऑल राइट, सो आयनाइजेशन एनर्जी के प्लीज नोटिस करना इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो कई बार तो यहीं पे धोखा हो जाता है, पूछा इनकरेक्ट था और आप करेक्ट मार्क करके आ गए, तो नैया वहीं डूब गई। आर देयर एनी स्टूडेंट्स हु मार्क्ड करेक्ट आंसर्स? ठीक है हृदय, ध्यान रखना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। कृष्णा ने क्वेश्चन लेफ्ट, दैट इज आल्सो अ गुड चॉइस। ऑल राइट, तो यहाँ पर अब इफ यू रिमेम्बर, जैसे ये सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड हो गया, फिफ्थ पीरियड हो गया, लाइक ये अक्रॉस पीरियड कंपैरिजंस हो रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने इसमें एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ देखे थे, तो बेरिलियम बोरॉन के बीच में देखा था, राइट, एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखा था। ठीक है, कि बेरिलियम बोरॉन से ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको याद हो तो लाइक मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में भी था, एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर के बीच में भी था। ठीक है, देन कैल्शियम और गैलियम के बीच में भी था, एंड आर्सेनिक एंड सेलेनियम के लिए बीच में भी था। बट इसके नीचे इफ यू रिमेंबर जो और एलिमेंट्स आते हैं, स्ट्रॉन्शियम और इंडियम, इसमें ये एक्सेप्शन नहीं था। ठीक है, एंड इसके आगे भी यहाँ पर if you have आर्सेनिक के नीचे SD एंड सेलेनियम के नीचे टेलुरियम, यहाँ पर ये एक्सेप्शंस नहीं थे। ठीक है, सो इसके लिए अब यहाँ पर लिथियम बेरिलियम बोरॉन का इन्होंने अकाउंट में ले लिया, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया। ठीक है, नाइट्रोजन एक्चुअली ऑक्सीजन से ज़्यादा होता था, तो मतलब ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर नाइट्रोजन सॉरी सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अकाउंट में ले लिया, नहीं लिया, इनफैक्ट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है,
दिस ऑल्सो बिकेम गड़बड़, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देन पोटेशियम, गैलियम, कैल्शियम, तो गैलियम और कैल्शियम में कैल्शियम ज़्यादा होगा, अकाउंट में ले लिया। आर्सेनिक और सेलेनियम में आर्सेनिक ज़्यादा होगा, ये भी अकाउंट में नहीं लिया, तो ये भी गड़बड़ हो गया, आर्सेनिक को सेलेनियम से ज़्यादा लिखना चाहिए था। देन रुबीडियम, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद एसएन, एसएन के बाद एसबी, एसबी का टी आई, ये एकमात्र करेक्ट है। सो द इनकरेक्ट ऑप्शंस आर ए, बी एंड सी, ठीक है। तो किसी ने भी अगर गलती से डी ऑप्शन मार्क कर दिया है तो आपका -2 है, और अगर आपने ए बी सी मार्क कर दिया तो +4, बाकी अगर आपने ए बी सी में पार्शियल मार्क्स करे, मार्किंग करी है, तो पार्शियल मार्क्स भी मिल जाएंगे। समझ में आया? ऑल राइट, अगला क्वेश्चन बताओ। 27th क्वेश्चन। टेंशन में तो नहीं आ रहे ना यहाँ पर, लाइक सर पैनिक तो नहीं दे रहा मैं तुम लोगों को। आई जस्ट वांटेड टू यू बी अवेयर अबाउट कि ये मोर देन वन चॉइस के क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देना, ठीक है, वरना पता पड़ा लाइक पैनिक में चले गए स्टूडेंट्स कि अरे अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, 27th वाले का आंसर देखो क्या आ रहा है। ऑल राइट, सो एसिडिक नेचर ये करेक्ट है, ठीक है। अगेन आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट पूछा है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, राइट, बिकॉज यहाँ पर हमने पढ़ा था दैट ये हाइड्रा कंपाउंड्स जो थे, हाइड्रा एसिड्स वाला जो कैटेगरी था, उसमें डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ रहा था, ठीक है। ये वो टेबल जो मैंने बनाया था एक हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स वाला, वो आपको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। देन आयनाइजेशन एनर्जी में लाइक ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा होता था, ये अभी जस्ट ऊपर मैंने हाईलाइट करा एक्सेप्शन, ठीक है। देन ऑक्साइड्स में, ठीक है, ऑक्साइड्स में एज वी गो लेफ्ट टू राइट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो बेसिक नेचर कम होती है, तो ये वाला तो करेक्ट है। एंड डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ती है, तो ये भी करेक्ट है, तो ये ओवरऑल करेक्ट ही रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देन डी में Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, सीजन प्लस, आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप, ये बढ़ता ही जा रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए, सी एंड डी, दैट इज व्हाट योर करेक्ट आंसर इज, ठीक है। हाँ, अब ए, सी, डी अगर किसी ने मार्क करा है तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर किसी ने ए एंड सी मार्क करा है सिर्फ, तो 3 नंबर नहीं मिलेंगे, 2 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन का एक ही मार्क है। समझ में आया हृदय? ऑल राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 28th का आंसर करो। 28 तो आसान है, ये सबका आ जाना चाहिए, आई होप इसमें यू आर एबल टू स्कोर। एंड ये अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है, तो ठीक है, ये सब गड़बड़ मत करना।
ऑलराइट, सो अब यहाँ पे नोटिस करना कैसा रहेगा ये. फॉस्फोरस ग्रेटर देन सिलिकन, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये करेक्ट है. कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नहीं ये गड़बड़ हो गया. कार्बन ग्रेटर देन ब्रोमीन, अब ये एक्चुअली ना तो सेम पीरियड का है ना तो सेम ग्रुप का है, तो इसमें इफ यू रिमेंबर द वैल्यूज तो ही आप इसको आंसर कर पाओगे, तो इसमें ये भी गड़बड़ हो गया. देन स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम में लाइक अगेन ये भी गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो कैल्शियम की स्ट्रॉन्शियम से ज़्यादा होगी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी सी डी रहेगा. ठीक है. ठीक है, काउंट कर रहे हो आप लोग अपना क्यूमुलेटिव स्कोर, किसके नेगेटिव में चल रहे हैं अभी तक. इज देयर एनीवन हु हैज गॉन इन द नेगेटिव जोन? ऑफ कोर्स है, कोई बताना नहीं चाहेगा. ठीक है, क्योंकि आएगा आप लोग देखोगे, मतलब एमटी का जो फाइनल रैंक लिस्ट आता है उसमें देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनके ओवरऑल नेगेटिव में नंबर्स रहेंगे. हर साल कुछ ना कुछ रहते हैं ऐसे धुरंधर जो नेगेटिव में रहेंगे ओवरऑल. ठीक है, एनीवेज चलो नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट भी काफी आसान है, 29th क्वेश्चन. 29th क्वेश्चन भी बताओ क्या रहेगा. ऑलराइट. क्या रहेगा इसमें आंसर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो क्रोमियम 3+ में यू हैव 6 में से 3 चले जाएंगे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 में से 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट. Mn2+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, Fe3+ में भी 5 रहेंगे, एंड कॉपर 2+ में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बी एंड सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्या कर रहे हो राज तुम, कैसे इसमें ए ऑप्शन आंसर रहेगा. ये तो आसान क्वेश्चन है यार, आप ये गड़बड़ नहीं कर सकते. हाँ दिया, ऐसा हो सकता है कि सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट हो. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन ट्राई करो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है.
ऑल राइट, सो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, देखते हैं एक बार. लैंथेनम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स, ये गलत है. लैंथेनम तो इनफैक्ट डी ब्लॉक का पार्ट रहता है, तो लैंथेनम इज नॉट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स. एक्टिनम वायलेट्स ऑफ बाउस प्रिंसिपल, ये करेक्ट है. एक्टिनम में ऑफ बाउ रूल वायलेट होता है, इसीलिए तो उसमें इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेटिंग इन 5f, instead of 5f इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, इलेक्ट्रॉन गोज इन 6d. अभी तो एक्टिनियम 6d में पहले चला जाता है एंड वो अगेन डी ब्लॉक का पार्ट हो जाता है, नॉट एक्टिनाइड सीरीज. ठीक है. देन क्रोमियम वायलेट्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गड़बड़ हो गया. क्रोमियम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थोड़ा वायलेट करता है, इट वायलेट्स अगेन ऑफ बाउ. ठीक है, इट वायलेट्स ऑफ बाउस प्रिंसिपल, नॉट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है. एंड लास्टली यहाँ पर जिंक के अंदर 10 एक्सचेंज पेयर्स है, ये भी गड़बड़ हो गया ना. 20 एक्सचेंज पेयर्स रहेंगे ना, 10 अप स्पिन वाले करेंगे और 10 डाउन स्पिन वाले करेंगे. ठीक है. तो ये था एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ यू आस्क मी. जिसने छोड़ दिया उसने समझदारी करी, जिसने अटेम्प्ट किया आई डोंट थिंक किसी का भी इसमें करेक्ट आंसर है. मतलब ए सी डी आई डोंट थिंक किसी ने भी मार्क करा है. ए सी डी ए सी डी ए सी डी किसी ने भी नहीं करा है, सबके नेगेटिव 2 हो गए. तो जिसने छोड़ दिया, कृष्णा तुमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा ये? नहीं छोड़ा, अटेम्प्ट कर लिया. अच्छा, हरिओम ने सिर्फ सी मार्क करा, तो चलो एक नंबर तो मिला. बी बी किसी ने भी मार्क कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा. हाँ, सर्वेश ने सी डी मार्क करा है तो 2 नंबर मिल जाएंगे. ए डी मार्क करा तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे. हाँ, बोलो सर्वेश. सर ए करेक्ट हुआ ना? नहीं ना, लैंथेनम लैंथेनाइड्स का पार्ट है ही नहीं ना, डी ब्लॉक में आता है ना. समझ में आया? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 31st पे आ जाओ. हाँ बोलो हर्ष. सर मुझे ये नहीं समझा, 10 exchanges are possible for d electrons in Zn. वो ऐसे काउंटिंग करते हैं ना अपन, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल है और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है D10. जिंक में D10 होता है ना. हाँ सर. तो अब ये जो अपस्पिन वाले हैं, लेट मी एक्चुअली यूज अ डिफरेंट इंक फॉर अपस्पिन एंड डाउन स्पिन. वेट, तो जो अपस्पिन वाले हैं वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये 5 आपस में कितने एक्सचेंजेस कर पाएंगे? 5 + 4 + 3 + 2 + 1, नहीं सॉरी, 4 + 3 + 2 + 1. ये Okay. इसके साथ में ये 4 एक्सचेंजेस हो गए, है ना. हाँ सर. फिर अब ये वाला इसके साथ में तो मैं डबल काउंट नहीं करूंगा. फिर ये वाला इन 3 के साथ में कर सकता है. ठीक है. फिर ये वाला इन 2 के साथ में कर सकता है. एंड देन ये लास्ट में ये वाले भी एक के साथ में कर सकते हैं. Okay सर. तो ये 10 हो गए अपस्पिन के, वैसे ही 10 रहेंगे डाउन स्पिन के. ठीक है सर, समझ. ऑलराइट,
देन 31 का बताओ. ऑलराइट, 31 में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू बी कॉशियस. एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो एनर्जी का ज्यादा होगा, सेकेंड एल्यूमिनियम का ज्यादा रहेगा. राइट, हाँ, फर्स्ट वाला करेक्ट है. देन टेलुरियम एंड एसबी. अब ये टेलुरियम और एसबी में वैसे भी एक्सेप्शन नहीं था और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो ये भी करेक्ट ही रहेगा. ठीक है. देन थर्ड ऑप्शन में तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये तो गड़बड़ हो गया. ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है ना, तो Fe प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी Fe से ज्यादा रहेगी. एंड देन इंडियम और स्ट्रोंशियम में इंडियम की ज्यादा रहेगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी करेक्ट ही रहेगा बिकॉज यहाँ पर अगेन कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, तो ये भी करेक्ट है. तो ए बी डी दैट इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया? साकेत का ही सही लग रहा है मुझे. बाकी हाँ, सर्वेश सी मार्क करने पर आपका गड़बड़ हो गया. अमान आपका भी सी मार्क करने पर गड़बड़ हो गया. प्रशस्त आपको भी पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे. अच्छा ठीक है, तुमने चेंज कर लिया बाद में. ठीक है, ऑलराइट, समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो. ऑलराइट, क्या रहेगा इसमें आंसर? Which of the following is correct? ठीक है, करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा रहा है. क्रोमियम ग्रेटर देन बोरॉन, यस ये करेक्ट रहेगा. देन Br माइनस एंड Cl माइनस, तो इनका आयनाइजेशन मतलब इनका डेल्टा H Eg का ऑपोजिट, एंड डेल्टा H Eg का तो क्लोरीन का वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया. देन Cl माइनस से ज्यादा रहता है एंड Br माइनस से ज्यादा रहता है. ये तो अपन ने देखा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हाँ बोलो हर्षल. सर मुझे पूछना था लाइक अगर हमें Br माइनस और Cl माइनस वैसे कंपैरिजन दिया हो तो फिर वो डेल्टा Eg करके फिर वो ऑपोजिट, वो एक ही मेथड है ना वो फाइंड करने के लिए? राइट,
वैसे जा सकते हैं। सर और फिर अक्रॉस द ग्रुप तो वो इंक्रीजिंग है ही ना? हाँ, मतलब क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, करेक्ट है। हाँ सर, नहीं लाइक Cl माइनस और Br लाइक Cl माइनस और लाइक सपोज F माइनस में एक्सेप्शन आ जाएगा ना। सर सपोज H2 माइनस और Cl माइनस पूछा हो तो? H2 माइनस और Cl माइनस में तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए, है ना। हाँ सर, हाँ सर। Z जिसका ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, और S माइनस और Cl माइनस? S माइनस एंड Cl माइनस ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, ओके सर। ये मुश्किल हो पाएगा कंपेयर करना। सर और एक डाउट था मुझे वो पीरियोडिक टेबल में से। हाँ, हमने जो वो बोला था कि लाइक क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है तो वो साइज इंक्रीज करता है, वो पॉइंट बोला था ना, वो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, एक बार समझा सकते हो? मतलब क्योंकि उसमें क्वांटम नंबर लाइक 1s2 2s2 वैसे 2s2 और 2p6 है, तो वो लाइक उतने इलेक्ट्रॉन्स भरे तब तक थोड़ी लाइक साइज सेम रहेगा, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। मतलब फर्स्ट शेल का साइज छोटा रहेगा, सेकंड शेल का साइज बड़ा रहेगा, थर्ड शेल का और बड़ा रहेगा, मतलब इसमें समझना क्या है। सर पर लाइक थर्ड शेल में 3s 3p 3d वो सबका साइज सेम थोड़ी रहेगा? नहीं नहीं, when I say shell it is the overall shell that we are talking about, ठीक है। that when I'm comparing 1s with 2s with 3s, राइट, तो ये साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जा रहा है, ठीक है। तो ओके। इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं दैट अगर मैं कोई दो ऑर्बिटल्स कंपेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है तो साइज इंक्रीज। हाँ, ओके, तो जनरल वे में लाइक इट्स नॉट लाइक एक ही इलेक्ट्रॉन भरते जाए तो? नहीं 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 नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। ऑल राइट, चलो 33 का आंसर बताओ। हाँ विवेक, अपन ने ये पहले डिस्कस करा हुआ है, ये मैंने क्लास में इसीलिए ये वाला एग्जांपल कराया था कि इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं देखते हैं कि Cl माइनस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसी से गड़बड़ आंसर आ जाता है। दैट इज वाई मैंने ये क्लास में एक्सप्लेन किया था, देखना आई थिंक ये 4th 5th लेक्चर में किसी ने एक्सप्लेन किया था मैंने एग्जैक्टली यही एग्जांपल्स लेकर। ऑल राइट, 33rd बताओ। अगेन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बोला जा रहा है। ऑल राइट, चलो मैं आंसर बताता हूँ अब। ए ऑप्शन गलत है। कोई बताएगा ये ऑप्शन गलत क्यों है? हाँ बोलो साकिब। सर एटम की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की नहीं। परफेक्ट। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम स्पिन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द रॉन्ग वर्ड। अगर ऑर्बिटल होता तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट रहता, या फिर जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो ये कह रहा था that no two electrons in an atom can have the same set of all four quantum numbers, तो फिर भी ये स्टेटमेंट करेक्ट रहता।
बट अभी यहाँ पर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स का सेम स्पिन तो हो ही सकता है ना, ठीक है, तो केयरफुली रीड करना, ये गड़बड़ हो गया। देन क्वांटम नंबर्स NL/ML फॉर px ऑर्बिटल मस्ट बी, ठीक है, ये मस्ट बी बोल के ये गलत कर दिया, क्योंकि ये मस्ट हो गया, ठीक है, N5 बोल दिया, ठीक है, 5p का N5 रहेगा और L1 रहेगा, ये एकदम करेक्ट है। बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +-1 कुछ भी हो सकता है ना, कंपल्शन थोड़ा ना है कि सिर्फ -1 ही होगा, ये मस्ट नहीं होना जरूरी है ना, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। देन जिंक 2+ इज डायमैग्नेटिक स्पीशीज, ये करेक्ट है, क्योंकि जिंक 2+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये डायमैग्नेटिक रहेगा। Then in ground state of chromium 5 electrons have magnetic quantum number -1, तो देख लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, राइट। तो कहाँ कहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 हो, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 हो, ठीक है। तो 2 + 2 + 1, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो C and D आर द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आई डोंट थिंक किसी का भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सी दीज आर ऑल गुड क्वेश्चंस, दीज आर ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस। डी में देखो ना आप, इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और कोई एक तो होगा ही सही ना जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 होगा। ऑल राइट, ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, 34th वाला, इसमें क्या रहेगा आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, F से I जा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है। आयनिक रेडियस तो नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रांग है ना, हाँ नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हाँ कर ही रहा है, सॉरी माय बैड, फ्लोरीन इज मोर और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीन इज लेस, तो BCD करेक्ट। बोलो भाविक। सर अभी 34 क्वेश्चन में मतलब जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें सर एक्सेप्शन को कंसीडर करके क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए कि जनरली किसको कंसीडर करके, मतलब सर 34 क्वेश्चंस में 34th क्वेश्चन में पूछा है ना सर हाँ हाँ, कि F2 to 1 F2 to I जाते वक्त कौन से प्रॉपर्टी डिक्रीज करते, तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पूछेंगे तो एक्सेप्शंस को कंसीडर करके क्वेश्चन करने का कि हाँ सर हाँ हाँ, जनरल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर मान लो में मैंने एक ऑप्शन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाला होता तो उसको आप गलत बोल देते, क्यों, क्योंकि F से Cl इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी और फिर Cl से I घटेगी, इट इज नॉट हैपनिंग इन अ डिक्रीजिंग मैनर ना, तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डालता तो वो गलत रहता। तो सर हमें एक्सेप्शंस को कंसीडर करके क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। यस, अच्छा ओके ओके ठीक है, ऑल राइट। सो दीज वर द क्वेश्चंस जिनका मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा था, ठीक है, कि आपको मोर देन वन चॉइस क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। आई होप यू गॉट द मैसेज करेक्टली, ठीक है। और तो ठीक है, अभी आई डोंट थिंक और क्वेश्चंस इसमें है प्रैक्टिस करने, मतलब दोज आर देन दीज इंटीजर टाइप्स, तो वो सब ठीक है, बट माय प्राइमरी फोकस वाज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये मोर देन वन चॉइस पे कैसे ध्यान देना है, ठीक है। ऑल राइट, now any other questions you would want to ask and understand?
Otherwise, I don't have much left to discuss and talk about right now. ठीक है, आप लोग अपने रिविजन्स के ऊपर फोकस करो. हाँ, एक एक करके चलते हैं. बोलो साकेत. सर Fe3+ में हाँ हाँ. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. नहीं ना, Fe3+ में कैसा होगा? आयरन के Fe में, कॉन्फ़िगरेशन से पहले Fe में से 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2, फिर एक 3d में से निकलेगा. हाँ वही सर, 3d में से वो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि हाँ. अनपेयर्ड? पेयर्ड वाला निकलेगा ना. हंड्स रूल वैलिड नहीं करना ना फिर. ओके, थैंक यू. बोलो हर्षद. सर वो डी वाला एक बार समझा सकते हो 33 में? 33 में डी वाला देखो ना यहाँ पर, लाइक इसको डिटेल्ड मैनर में अगर मैं लिख के दूं आपको तो let me put it over here. ठीक है, अब इसमें आप नोटिस करना. लेट मी राइट डाउन द बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, आई थिंक वो आपको बेटर हेल्प करेगा. ऑलराइट, सो अब इसमें ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप है. यस. इसमें एक ही रहेगा और इन सब में भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा. राइट, अब n अगर मैं नोटिस करूंगा तो ये इनके n रहेंगे. l अगर मैं बोलूंगा तो ये 0 0 1 0 1 0 2 और ml 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0. देन लास्टली ये कैसा रहेगा? -2 -1 0 1 2. तो अब आप काउंटिंग करो ना. आपसे पूछा जा रहा है -1 के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पर 2 रहेंगे, यहाँ पर 2 रहेंगे और यहाँ पे 1 रहेगा. समझ में आया? सर ओ हाँ, ओके ओके, हाँ सर समझ गया, थैंक यू. ओके, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? हाँ बोलो कृष्णा. सर वो टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनमें डाउट है मेरे को. हाँ हाँ बोलो ना. मतलब मुझे या तो व्हाट्सएप पे सेंड करो, ग्रुप पे सेंड कर तो दो. मैं बोल देता हूँ ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस? तो ऑप्शंस K प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस और Li प्लस एक्वस. तो सर क्या होगा इसमें? तो ये एक्वासाइंस के बारे में बात करा जा रहा है ना. तो इफ यू रिमेम्बर लाइक ये Li प्लस Na प्लस एंड K प्लस, राइट. इसमें जो गैशियस आयन का साइज है वो तो इस तरीके से है. ठीक है, बट इनका चार्ज तो सबका सेम है, राइट. और साइज इनका इस मैनर में है, तो फिर हाइड्रेशन किसका सबसे ज्यादा होगा? Li प्लस का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो उसके एक्वस आयन का साइज सबसे ज्यादा होगा. समझ में आया? और सर फिर एक और है. Which of the following is different from the other three oxides? MgO, SNO, ZNO, PbO. हाँ, तो इसमें सॉरी दोबारा बोलना. सर वैलेंसी के हिसाब से नहीं करेंगे क्या? नहीं बोलो. SNO, MgO, SNO, ZNO, PbO. ZNO, PbO. ये मतलब इसमें बैलेंस ही तो सबकी सेम ही है, +2 -2 है ना. जो अंतर आ रहा है सर SN की तो डुअल वैलेंस है ना. बट वो थोड़ा ना पूछा जा रहा है आपसे. आपसे तो इनके बारे में पूछा जा रहा है ना. तो इसमें ये तीनों एक्चुअली एम्फोटेरिक होती है और MgO जो है वो
बेसिक होता है. दूसरा This is what the difference is. सर एक लास्ट क्वेश्चन हाँ. कि ionic radii of K plus and F minus is nearly the same 1.34 angstrom. So atomic radii of K and F are respectively 1.34 1.34 या फिर 0.72 1.96 मतलब नहीं, दोबारा बोलो. ionic radii of K plus and F minus is nearly the same हाँ. 1.34 angstrom. So atomic radii of K and F are respectively अब one per option A one. रुक जाओ. हाँ. आपको इतना तो पता है कि K जो रहेगा वो K प्लस से बड़ा रहेगा, ठीक है, एंड F जो है वो F माइनस से छोटा रहेगा. हाँ सर ये तो बस इसके बेसिस पर चूज कर लो ऑप्शन. वैल्यूज पे मत जाओ, बस ट्रेंड. सर इसमें दो ऑप्शन है जिसमें है ना मतलब वैल्यू ट्रेंड एक तरह का, जैसे K प्लस 1.96 और 0.72 और 1.96 और 1.34 K और F के लिए. ये दोनों में दोनों ऑप्शंस में ये ट्रेंड फॉलो होना चाहिए. मतलब जो भी डेटा आप बोल रहे हो ना, उसमें K का K प्लस से ज्यादा साइज होना चाहिए और F का F माइनस से साइज कम होना चाहिए. तो जिस ऑप्शन में ये दोनों सर K और F में K और F का पूछा, K प्लस और F माइनस का तो उन्होंने दे रखा है. ये देखो ना, यहाँ पर अब इनके बेसिस पर देखो K प्लस और F माइनस दोनों बराबर है. K प्लस से बड़ा है और F माइनस से छोटा है, तो K F से बड़ा हो गया ना. हाँ सर ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन उसमें ऐसा है दो ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें K F से बड़ा है. जैसे K का एक वैल्यू F का एक वैल्यू 0.72 और एक वैल्यू 1.34 और K का वैल्यू कुछ 1.96 के अराउंड है. हाँ, तो K का 1.96 फॉर K और दूसरा वैल्यू क्या दिया है? सर K का एक ही वैल्यू, F के दो वैल्यूज है 0.72 और शायद से 1.34. तो ये गड़बड़ हो गया ना. F का F माइनस से छोटा है, तो ये गड़बड़ हो गया ना. समझ में आया? कैसे सर ये कैसे गड़बड़ होगा? F जो है अच्छा हाँ F, हाँ समझा. ओके डन सर. ठीक है. हाँ बोलो कृष्णा. अच्छा बोलो अमन. सर वो जो नील्स बोर की इक्वेशन थी सर, वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है ना? हाँ. सर अगर हम उधर Z की जगह Z इफेक्टिव डालकर देखें तो आंसर मैच होगा क्या? नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है. सर क्योंकि मैंने ना ऐसा करके ये जो एग्जाम्पल है ना, मैंने इधर ऐसा करके देखा, मेरा आंसर नियरली मैच हुआ था. मैंने Z इफेक्टिव डाला स्लेटर्स रूल यूज करके. नहीं, हो सकता है कि इन सम सिनेरियोज इट माइट वर्क फॉर यू, बट लाइक पॉइंट यही है कि अगर एक्चुअल इक्वेशन लिखनी है तो वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में व्हाट हैपेंस इज वेव फंक्शन का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है. सो थ्योरेटिकली स्पीकिंग you will have to take that interference into account and then solve for the orbitals. But अब Z को Z effective लेकर what you are assuming is कि single electron मान लेते हैं, ठीक है, and then you are trying to predict the result. So yeah, it might give you certain answers in an approximated manner, but if you ask me in terms of equation valid है कि नहीं, I would not say equation is valid. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक. All right. Any other doubts? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इन चीजों को भूलना नहीं है. एमटी के बाद में मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन दीज पॉइंट्स, ठीक है. एंड बाकी बिफोर द एमटीज रिलैक्स, लाइक डोंट पैनिक. सैटरडे संडे रिलैक्स मोड में निकालो. जितनी मेहनत आपने करी है अभी, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू नाउ, ठीक है.
Chalo, all the best for your examination, guys. We'll meet now next week. We'll resume with gaseous state and उसका booklet का part जो बचा हुआ है उसको cover करेंगे, and then after that we'll work with chemical bonding chapter. ठीक है? So I think next week में gaseous खत्म हो जाएगा, फिर chemical bonding start कर देंगे next week में. हाँ, मैं आज का ये PDF भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, as well as recording भी डाल दूंगा, so no worries on that front. ठीक है, ऑल राइट, चलो बाय. ये कैसा डाउट है सर्वेश? हाउ ट्रिकी क्वेश्चन कैन बी मेड? मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट थोड़ा ना होता है, हाउ ट्रिकी क्वेश्चन कैन बी मेड. ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता है. अभी देखा ना आपके सामने कितनी जगह पर ट्रिक्स थे. ठीक है, all right, chalo, then let me close the lecture. Thank you guys, take care, all the best, bye bye. Thank you, sir. Yep, bye. Thank you, sir.